Good evening, students. Welcome to my channel. This is the third lecture of tangent and normal. In the last lecture, I have completed up to question number 4, exercise 8b, elements of mathematics. Okay. Today I will do some more questions from exercise 8b, that is tangent and normal. The topic is tangent and normal. Question number 7 I am doing. Question number 7. So that the sum of the intercepts, I am writing the question, so that the sum of the intercepts on the coordinate axis of any tangent to the curve root x plus root y equal to root a is a constant. This is your question number 7. First I am going to explain the question. So that the sum of the intercepts, we know whenever a line meets x-axis at some point and y-axis at some point, the distance from origin to the point of intersection of the line with x-axis is called x-intercept, and distance from origin to the point of intersection of the line with y-axis is called y-intercept. Sum of intercepts on the coordinate axis. Generally, intercepts are made on coordinate axis of any tangent to the curve. Any tangent to the curve root x plus root y equal to root a is a constant. This is your curve equation of curve. To understand this question, let me do a rough diagram. Otherwise, you cannot start. This is your x-axis, this is your y-axis, this is your origin. Let's say this is your curve. Okay, this is your curve. Its equation is given root x plus root y is root a. Now, student, you see, on this curve we have infinite number of points. This is not actual sketch, rough sketch I am doing. The question says that if you, let me change the curve. First I am making a tangent, then if I do the curve it will be easy to understand. Let's say this is your curve. The equation is root x plus root y equal to root a. On the curve we have infinite point. You take any point randomly, and at that point you draw a tangent to the curve. Now the tangent will meet x-axis at some point, let's say a, y-axis at some point, let's say b. In the question it is given any tangent. Matlab means you can draw tangent at any point on the curve. Clear? So the question says to prove क्या करना है? What we have to prove? So that means prove that what is we have to prove sum of the intercepts. In the diagram, students, you see OA is your x-intercept, OB is your y-intercept. So to prove, what we will write, OA plus OB is a constant. ये constant हमें prove करना है. This is all about the question. So how to start? At first, I will assume the point of contact as alpha beta. You can consider x1, y1 also. I am considering the point of contact as alpha beta. Let P equal to alpha beta, where I don't know what is alpha, what is beta. It can be anything because this is a variable point. On this curve, I have taken randomly. I don't know what is alpha beta. So at first we have to consider the point as alpha beta. Then we will think that how we can get equation of tangent. To find equation of tangent, equation of curve, what is your equation of curve?
the equation of curve will help to find equation of tangent. How? Equation of curve, it is given root x plus root y equal root a. To determine slope of tangent at P, I have to differentiate the equation of curve. Differentiate with respect to x. So students, root x derivative is 1 by 2 root x. Root y derivative is 1 by 2 root y dy by dx. Students make mistake here. Root a derivative, they write 1 by 2 root a. No, a is constant. So derivative will be 0. You can cancel 2 by taking half common, that can be cancelled. So your dy by dx is this will become negative. ये cross multiply होगा, means minus root y by root x. Now this will imply slope of tangent. Where we have drawn the tangent at P, so what we will write dy by dx at P. What is coordinate of P? Alpha beta. So whatever we got dy by dx, in that dy by dx we will put alpha beta. Means in place of x we will write alpha, in place of y we write beta, minus root beta by root alpha. This is your slope of tangent, students. After finding slope of tangent, now we will write equation of tangent at P. The approach is very easy. First of all, we will find out the equation of tangent. Then we will think what we can do later. So equation of tangent formula is y minus y1. Since we have taken point of contact is alpha beta, we will write y minus beta equal to mt. Mt is this minus root beta by root alpha into x minus alpha. Understood? Till now it is right. This is your equation of tangent. देखो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर रहा हूँ. ये रूट अल्फा को मैं इधर ला रहा हूँ, तो y रूट अल्फा माइनस बीटा रूट अल्फा और दिस मल्टीप्लाई हियर माइनस x रूट बीटा प्लस अल्फा रूट बीटा. दैट इज, इसको इधर ले आओ, x रूट बीटा प्लस y रूट अल्फा, इसको इधर ले आओ, अल्फा रूट बीटा प्लस बीटा रूट अल्फा. Till now it is correct, x root beta plus y root alpha. Here you do one thing, take root alpha root beta common. When we will take root alpha root beta common, this will become root alpha plus root beta. One thing students, since we have taken alpha beta on the curve, it will satisfy the equation of curve. Now I am erasing this portion. Now what I will write? This is equation 1, let's say. Alpha beta satisfy equation of curve. So root alpha plus root beta equal to root a. This expression will be used here in equation 1. Let's say it is 2. Put 2 in 1. What is 1? Equation of tangent. Equation of tangent is x root beta plus y root alpha equal to, here we will put root a. So this becomes root alpha root beta root a. Understood? Till now it is correct. Now what I am doing, this factor I will divide both sides. Divide root alpha. This is a very good question. Both sides. This question came in previous board exam. When I will divide this both sides, यहाँ root beta cancel होगा, तो क्या है? X by root alpha root a. This will become y by root beta root a equal to 1. What is the advantage of writing this in this form? So finally I got equation of tangent in the simplest form. इसको equation 3 मान लो. कभी भी equation of tangent मतलब equation of line, tangent क्या है? एक line है ना, यहाँ पर लिखो tangent. कभी भी equation of line को
अगर हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, राइट साइड में 1 रखेंगे, तो x के नीचे जो होगा वो x इंटरसेप्ट होगा, y के नीचे जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। अंडरस्टूड और नॉट? These all are from 11 coordinate geometry. So now I will write x intercept. In the diagram, x intercept is OA. From the equation of tangent, x intercept is this denominator. x के नीचे जो है वो है x intercept, root alpha root a. y intercept is OB, which is root beta root a. Now the question is complete. We have to prove OA plus OB is constant. Now OA plus OB is equal to root alpha root a plus root beta root a. Now this we want to prove constant. We will not stop here, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा तो अननोन है ना हमारे लिए, तो रूट ए कॉमन लेंगे, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा आएगा, रूट ए, व्हाट इज रूट अल्फा प्लस रूट बीटा? रूट ए, रूट ए इज रूट ए, रूट ए into रूट ए इज ए, which is a constant. This question, if it comes in exam again, it will be a 4-mark question. ठीक है. Next question number exact in the same way. There is another question in your book, exercise 8b. This was question number 7. Now I am taking question number 12. Exact same question. Still I will do it so that the length of the portion, of the tangent to x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equal to a to the power 2 by 3 intercepted between the axes is constant. In this question, what we have to prove? So that the length of the portion of the tangent to the curve, this is your curve student, tangent का length of the portion कितना लेंगे? Intercepted between the axes, x axis और y axis के बीच में जितना length of portion होगा tangent का वो constant होगा. तो previous question was sum of intercept constant. In this question, length of the portion of the tangent intercepted between the axes is constant. That we need to prove. इसमें भी diagram वैसे ही करेंगे. This is your x axis, y axis, origin. Let's say I am doing first tangent. Then it will be easy to sketch the curve. We are doing rough sketch. This is not exact sketch. To understand the question, we are doing like this. Let's say this point is P again. Equation of curve क्या है? X power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is a power 2 by 3. This is your tangent. Length of the portion of the tangent to the curve intercepted between the axes is constant. In this question also, the tangent can be drawn anywhere on the curve. Clear? Let's say this is your point A, this is your point B, this is your x-intercept, this is your y-intercept. But in this question student, to proof में हम क्या लिखेंगे? What we will write in proof? If you understand the question carefully, यहाँ पर हम लिखेंगे AB is constant. If you see the diagram carefully, tangent का कितना portion between the axes intercepted है, कितना AB, ये constant हमें proof करना है. इसका हम कैसे करेंगे? ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो पता है हमें. देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हुआ था वैसे ही होगा. तो पहले हम इस पॉइंट को मानेंगे अगेन अल्फा बीटा. लेट P क्या है? तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट. तो मैं यहाँ शुरू से लिख रहा हूँ अल्फा बीटा, क्योंकि कर्व के ऊपर है. अल्फा बीटा सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व. सो ये यूज होगा
अल्फा पावर 2/3 प्लस बीटा पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। इसको इक्वेशन 1 मान लो। Here also we will try to get the equation of tangent। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। Now from the equation of curve को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वहां से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चलेगा। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कर्व, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा अभी। डायरेक्टली आई एम राइटिंग 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू dx इक्वल टू a पावर 2/3 is constant, derivative will be 0, you can cancel 2/3, so what will be your dx। ये इस साइड आएगा माइनस होगा, माइनस x का पावर कितना है -1/3 डिवाइडेड नीचे होगा y की पावर -1/3। पावर्स को पॉजिटिव बनाओगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, y की पावर 1/3 बाई x की पावर 1/3। दिस इज योर dx। देन mt क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वी हैव ड्रॉन टेंजेंट एट p, तो p का कोऑर्डिनेट हम यहाँ यूज करेंगे माइनस अल्फा बीटा, y की जगह पर बीटा, x की जगह पर अल्फा पुट करेंगे। बीटा की पावर 2/3 so 1/3 अल्फा की पावर 1/3। ये है तुम्हारा mt, यहाँ तक ठीक है। नाउ वी विल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा स्टूडेंट्स। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p इज y माइनस y1, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है y1, बीटा mt ये है माइनस बीटा की पावर 1/3 बाई अल्फा की पावर 1/3 इंटू x माइनस अल्फा। ये तो समझ में आ रहा होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे लिखते हैं, y माइनस y1, पॉइंट का जो जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उसका y कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी मैंने फाइंड किया था माइनस बीटा की पावर 1/3 बाई अल्फा की पावर 1/3 इंटू x माइनस x1 इज अल्फा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y अल्फा की पावर 1/3 माइनस बीटा अल्फा की पावर 1/3, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस x बीटा की पावर 1/3 प्लस अल्फा बीटा की पावर 1/3, इसको इधर ले आओ, x बीटा की पावर 1/3 प्लस y अल्फा की पावर 1/3, इसको उधर ले जाओ, अल्फा बीटा की पावर 1/3 प्लस बीटा अल्फा की पावर 1/3, x बीटा की पावर 1/3 प्लस y अल्फा की पावर 1/3। यहाँ से स्टूडेंट अल्फा की पावर 1/3 बीटा की पावर 1/3 कॉमन ले जाओ। जब हम कॉमन लेंगे देखो केयरफुली, यहाँ बनेगा अल्फा की पावर 2/3 प्लस बीटा की पावर 2/3। दिस थिंग यू कैन नो, बट इन इक्वेशन 1 अल्फा की पावर 2/3 प्लस बीटा की पावर 2/3 का वैल्यू a की पावर 2/3, दैट वी कैन यूज हियर। यूजिंग इक्वेशन 1 we get, क्या लिखेंगे देखो, यूजिंग इक्वेशन 1 we get, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x इंटू बीटा की पावर 1/3 प्लस y इंटू अल्फा की पावर 1/3, ये तो एज इट इज होगा, अल्फा की पावर 1/3 बीटा की पावर 1/3, इसके जगह पर हम पुट करेंगे a की पावर 2/3। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे, जो राइट साइड बनेगा उसको दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, डिवाइड अल्फा की पावर 1/3 बीटा की पावर 1/3 a की पावर 2/3 बोथ साइड्स। ये करने का फायदा क्या है, हमें इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। देखो स्टूडेंट अभी क्या लिखेंगे, जब ये एक्सप्रेशन दोनों साइड डिवाइड होगा, यहाँ कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, x बाई अल्फा की पावर 1/3 a की पावर 2/3, ये बनेगा y बीटा की पावर 1/3 a की पावर 2/3 इक्वल टू ये 1 बनेगा। इन बोथ क्वेश्चन द अप्रोच वाज सेम। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे बताया था। यहाँ से क्या पता चलेगा, इफ यू सी द डायग्राम, इस टेंजेंट का, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका इक्वेशन ये है, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट डायग्राम में क्या है, OA, डायग्राम में OA है, बट फ्रॉम द इक्वेशन x इंटरसेप्ट कौन है, x के नीचे जो होगा
क्या है अल्फा की पावर 1/3 सॉरी ए की पावर 2/3। वाई इंटरसेप्ट क्या है, व्हाट इज योर वाई इंटरसेप्ट, ओबी इज वाई के नीचे जो होगा बीटा की पावर 1/3 ए की पावर 2/3। यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट दिस, हमें जो प्रूव करना है ए बी इज कांस्टेंट, तो व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट ओ ए एंड ओ बी। देखो मैंने क्यों फाइंड किया, ओ ए पता चल गया, ओ बी पता चल गया, तो ए बी पता चल जाएगा ना। इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, इफ यू सी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, पाइथागोरस करो। सो ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, अल्फा की पावर 1/3 ए की पावर 2/3 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बीटा की पावर 1/3 ए की पावर 2/3 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, हमें ए बी कांस्टेंट प्रूव करना है, बट आई एम फाइंडिंग आउट ए बी स्क्वायर। लास्ट में मैं फाइंड करूँगा ए बी, इसको सॉल्व करो, ए की पावर 2/3 का स्क्वायर, ए की पावर 2/3 का स्क्वायर मतलब ए की पावर 4/3 कॉमन आएगा, ये क्या बनेगा अल्फा की पावर 2/3 प्लस बीटा की पावर 2/3। समझ रहे हो, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में था, मैंने तो मिटा दिया। इसका वैल्यू क्या था ए की पावर 2/3, तो ए बी का स्क्वायर क्या बनेगा ए की पावर 4/3 इंटू ए की पावर 2/3। इफ यू क्लब दिस टू इट इज ए स्क्वायर, 4/3 प्लस 2/3 6/3 विच इज 2। तो ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो ए बी क्या बनेगा, ए बी इक्वल टू ए बनेगा। ए क्या है एक्चुअली, ए कांस्टेंट है ना, विच इज ए कांस्टेंट। अंडरस्टूड? These two questions are very important, almost same question है कि नहीं। नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट में आई विल एक्सप्लेन एंगल बिटवीन टू intersecting curves. In CHSC book, means Elements of Mathematics, there are only two questions on this under this section, angle between two intersecting curves. Generally students, we know how to find angle between two lines. अगर दो लाइन होगा, ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये 180 डिग्री minus theta होगा। This is called angle between two lines. This we know from school mathematics. But here we are interested to study angle between two intersecting curves. Let's say ये curve है, ये एक curve है। Let's say this is C1, this is C2. C1 means curve 1, C2 means curve 2. Let's say C1 का कुछ इक्वेशन होगा, curve 1 का कुछ इक्वेशन होगा, उसको मैं मान रहा हूँ y equal to fx. सिमिलरली C2 कर्व का भी कुछ इक्वेशन होगा, लेट्स से इसका इक्वेशन है y इक्वल टू gx, ठीक है। नाउ द एंगल बिटवीन टू कर्व को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देयर इज नो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व, तो उसका कुछ डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, वो दो कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो देन वी विल थिंक ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जनरली क्वेश्चन में दिया नहीं होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम फाइंड करेंगे। वो फाइंड कैसे होगा, सॉल्विंग द टू इक्वेशन ऑफ कर्व्स। इक्वेशन ऑफ दोनों कर्व जो भी होगा उसको हम सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड करेंगे, वो होगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन क्या करेंगे स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इफ यू सी केयरफुली, दिस वाज कर्व C1, उसके ऊपर मैंने ये टेंजेंट बनाया, तो इसको T1 से डिनोट करता हूँ। टेंजेंट 1 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P टू द कर्व C1। सिमिलरली कर्व 2 के
ऊपर भी एक टेंजेंट हम खींचेंगे। लेट्स से दिस इज योर टेंजेंट। द डायग्राम मे नॉट बी लुकिंग गुड बट यू कैन एज्यूम कैसे होगा। ये है स्टूडेंट्स T2, ये क्या है, टेंजेंट टू द कर्व C2 एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी ये दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, ये जो एंगल है देखो, दिस एंगल इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। सो कैसे डिफाइन होगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स? एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। कर्व अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होगा देयर इज नो एंगल, वी कैन नॉट फाइंड एनी एंगल। कर्व को इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो angle between two intersecting curves is defined as angle between their tangents at the point of intersection. You can note it. Angle between the two intersecting curves is the angle between their tangents. दो कर्व है ना, तो दोनों का दो टेंजेंट होगा, C1 का एक टेंजेंट होगा, C2 का एक टेंजेंट होगा at the point of intersection. And we always measure the acute angle, students. We always measure the acute angle. It is the convention. ठीक है। So this is all about the theory. Then mathematically हम कैसे फाइंड करेंगे थीटा? तभी मैं लिखूंगा स्टेप्स। स्टेप्स कौन सा स्टेप्स? स्टेप्स टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व। फर्स्ट स्टेप व्हिच आई टोल्ड इन द थ्योरी, पहले हमको इस पॉइंट को फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में दो कर्व का इक्वेशन दिया होगा, तो फाइंड P x1 y1 कैसे फाइंड होगा? बाय सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ C1 एंड C2। C1 क्या है स्टूडेंट्स? कर्व 1। C2 क्या है? कर्व 2। कर्व 1 का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू fx। कर्व 2 का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू gx। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है C1 कर्व क्या है? y इक्वल टू fx। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx which is your f dash x also। मतलब कर्व 1 का जो इक्वेशन होगा उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, dy/dx फाइंड करूंगा, दैट इज f dash x। फिर इस डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो पॉइंट डालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। एंड m1 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 is dy/dx at t, that is f dash x at t। यहाँ रेस्पॉन्स में और एक बार बोल रहा हूँ, कर्व 1 का इक्वेशन जो भी होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx फाइंड करेंगे जो कि f dash x होगा, क्योंकि मैंने उसका इक्वेशन एज्यूम किया है y इक्वल टू fx। फिर उस डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करूंगा, क्योंकि वहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, तो पुट करूंगा तो मुझे करस्पॉन्डिंग टेंजेंट T1 का स्लोप मिलेगा m1, उसको मैं m1 से डिनोट कर रहा हूँ। एंड C2 कर्व का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू gx। इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx क्या होगा? g dash x होगा। यहाँ से हमें उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप मिलेगा, m2 क्या होगा? dy/dx at t। बट ये दोनों dy/dx अलग है, ये कर्व 1 का dy/dx होगा, ये कर्व 2 का dy/dx होगा, दैट इज g dash x at p। ये सब कैलकुलेशन करना होगा हमें। अंडरस्टूड? Once you get slope of tangents to each curve in 11th coordinate geometry we have studied, whenever two lines having slopes m1 and m2, the angle between the two lines is given by tan theta। वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। स्टेप 3 क्या है? यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? यू टेक दिस एंगल थीटा using the formula tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये हमें पता है फ्रॉम 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कभी भी दो लाइन का स्लोप अगर m1 m2 होगा तो उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल को फाइंड करने के लिए ये है फॉर्मूला tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। मॉडुलस लेने से क्या होगा? tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा। Using the formula this we get the required angle theta, the required angle theta। मान लो tan थीटा का वैल्यू 2 आ गया तो थीटा tan इनवर्स 2 का जो भी वैल्यू आएगा अकॉर्डिंगली थीटा आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है?
देन अभी क्या है देखो स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारा स्टेप्स टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ। नोट क्या है, देयर आर 2 पॉइंट्स। इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू अगर मैं 0 इस फॉर्मूला में डालूंगा, tan 0 कितना होगा 0, 0 इक्वल टू दिस मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इक्वल m2 आएगा। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन m1 इक्वल m2, m1 इक्वल m2 मतलब क्या है, टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, दो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे क्योंकि कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है। अंडर दिस सिचुएशन थीटा इक्वल टू 0 द टू कर्व्स विल टच ईच अदर। अगर दोनों कर्व अलग हो जाएंगे तो एंगल कुछ भी फॉर्म नहीं होगा, बट थीटा इक्वल टू 0 आई तक है। तो इन दैट केस वी विल गेट ए कॉमन टेंजेंट, ये ही T1 होगा as well as this tangent will be T2. So in this case what we say, tangents are parallel, clear, but curves touch each other हम बोलेंगे। And C1, C2, C1, C2 मतलब two curves touch each other. This condition you should remember. कभी भी दो कर्व अगर touch each other होगा at the point of intersection, then in that case m1 equal to m2 होगा। नंबर 2 क्या है, if theta equal to 90 then theta 90 डालो इधर, tan 90 कितना है, undefined means 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो हमें पता था हम 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री that m1 m2 -1 ऑब्वियसली होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी -1। तो इन दैट केस क्या होगा, tangent 1 और tangent 2 they are perpendicular. Let's say this is tangent 1, this is tangent 2. So let's say this is curve 1, curve 1, curve 2 कैसे होगा, curve 2 मान लो ऐसे होगा। तो in this case the tangents are perpendicular, tangents are perpendicular. Are you getting this scenario? If theta is 90 then m1 m2 is -1 and T1 perpendicular to T2। बट हम कभी भी कर्व्स आर परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे। एंड C1, C2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। यू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस वर्ड आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। यू रिमेंबर दिस कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल कर्व्स। अंडरस्टूड? तो कभी भी क्वेश्चन में अगर दिया होगा दो कर्व ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, m1 into m2 equal to -1। This was the theory on this angle between two intersecting curves. Let us take some questions. तुम्हारे बुक को मतलब CHC एलिमेंट्स बुक में एक्सरसाइज 8 में 2 क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा अभी, क्वेश्चन नंबर 8। बुक में क्वेश्चन कुछ अलग दिया है, मैं इसे लिख रहा हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स वी ऑलवेज फाइंड एक्यूट एंगल। व्हाट वी फाइंड? एक्यूट एंगल। एंगल बिटवीन द कर्व्स y equal to 2 to the power x and y equal to 5 to the power x. But in your book क्वेश्चन ऐसे है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन दिस टू कर्व इज समथिंग इज गिवन, ln समथिंग कुछ दिया है, tan इनवर्स ऑफ ln समथिंग दिया है। बट मैंने क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि अगर दो कर्व का इक्वेशन ऐसे होगा तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। आंसर तो मैं मान रहा हूँ C1, पहला कर्व को मैं C1 ले रहा हूँ, y equal to 2 power x। सेकंड कर्व को मान लो C2, इसका इक्वेशन दिया है y equal to 5 to the power x। वी विल फॉलो द स्टेप्स। ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली बोल रहा है कि टेंजेंट मतलब एंगल बिटवीन टू कर्व्स फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लो P, हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व 1 and 2। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स unable to solve this type of equation, but very easy.
तो सॉल्व कैसे होगा देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में क्या लिखा है y इक्वल टू 2 पर x, इक्वेशन 2 में क्या लिखा है y इक्वल टू 5 पावर x, वी गेट क्या करेंगे यहाँ पर 2 पावर x इक्वल टू 5 पावर x करेंगे, मतलब आई एम एलिमिनेटिंग y फ्रॉम द बोथ द इक्वेशन, y को अगर मैं हटा दूंगा 2 पावर x इक्वल टू 5 पावर x होगा। इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट बहुत इजी है, x इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करने वाला एक ही वैल्यू है x इक्वल टू 0, यू कैन क्रॉस चेक, 0 डालेंगे 2 पर 0 1 आएगा, 5 पर 0 1 आएगा, तो सेटिस्फाई हो रहा है x इक्वल टू 0 एंड y कितना होगा, x 0 होगा तो y कितना होगा, यहाँ नहीं तो यहाँ डाल दो y 1 होगा, यहाँ डालो 2 पर 0 1, यहाँ डालो 5 पर 0 1, सो तुम्हारा p क्या निकल के आया है 0,1, ये पहला स्टेप हो गया, वी ऑब्टेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी हम सोचेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा फॉर बोथ द कर्व, फ्रॉम C1 की इक्वेशन ये है, जो d ओवर dx तुम्हारा क्या होगा 2 पावर x ln 2, ये है फॉर्मूला a पर x का डेरिवेटिव, a पर x ln x। यहाँ से हमें पता चलेगा m1 क्या है स्टूडेंट, तो C1 के ऊपर जो टेंजेंट होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 1, उसका स्लोप हम डिनोट कर रहे हैं m1। डेरिवेटिव जो आया है उसमें हम पॉइंट डाल देंगे, समझ रहे हो, m1 क्या है d ओवर dx एट टू p, तुम्हारा d ओवर dx है, इसमें p का पॉइंट डाल दो, p का पॉइंट मतलब x में 0 डाल दो, y में 1 डाल दो, इसमें तो y नहीं है, x में 0 डालने से आ जाएगा 2 पर 0 1, तो मतलब ln 2 आ रहा है। सिमिलरली फ्रॉम C2 d ओवर dx, सेकंड कर्व का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 5 पर x, उसका डेरिवेटिव 5 पर x ln 5, तो यहाँ से m2 आएगा स्टूडेंट, सेकंड कर्व से m2 आएगा, फर्स्ट कर्व से m1 आएगा, इसका d ओवर dx कितना है, तो ये भी वैसे होगा d ओवर dx एट p, इसमें p मतलब 0 1 डालेंगे, मतलब x की जगह 0 डालेंगे तो ln 5 बनेगा। यहाँ तक ठीक है। और एक बात स्टूडेंट देखो, m1 m2 जो वैल्यू है ln to ln 5 वैल्यूज वी डोंट नो, बट यू रिमेंबर ln के बाद जो नंबर बड़ा होगा वही ln बड़ा होगा, हियर ln 5 इज ग्रेटर देन ln, ये मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ देखो, इसका यूज होगा क्योंकि हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है, अभी लिखेंगे लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, बी द रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल मतलब दोनों पाथ के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा, सो tan थीटा कितना होगा, मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, बट यहाँ पर मैं करेक्शन कर रहा हूँ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, क्योंकि मोड है ऊपर m1 माइनस m2 लिखो या फिर m2 माइनस m1 लिखो वही सेम होगा। तो m2 मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इन दोनों में ये बड़ा है ये छोटा है, अगर मैं m1 माइनस m2 लिखता तो ln2 माइनस ln5 नेगेटिव हो जाता, वैसे लिखने से भी होगा, मोड को हटाएंगे तो बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा ln5 माइनस ln2 बाई 1 प्लस ln5 इंटू ln, या फिर ln2 इंटू ln5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ln का प्रॉपर्टी है ना, ln a माइनस ln b क्या होता है ln a बाई b, सो ln 5/2, अभी मोड की भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ln5 माइनस ln2 एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि ln5 ln2 से बड़ा है, सो ln 5/2 बाई 1 प्लस ln2 इंटू ln5, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ये जो आया है ये क्या आया है tan थीटा आया है, वहाँ से थीटा हमें पता चलेगा, थीटा क्या होगा, थीटा विल बी फाइनली tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसको लिखो ln 5/2 बाई 1 प्लस ln2 इंटू ln5, ठीक है स्टूडेंट्स।